How can affiliate marketers optimize their email subject lines to improve their open rates? Hello everyone, I'm Shubhamjeet Kumar and in this video I will tell you कि affiliate marketers कैसे अपने email subject lines को optimize कर सकते हैं so they improve their open rates. Okay, a big problem that affiliate marketers face is that although the email copy is compelling and catchy, their email subject lines are not up to par, they are ordinary, due to which their open rates and consequently clicks take a severe hit. So, to help you, I will share the top 9 strategies through which you can improve your email open rates. So, let's jump in. Before sharing the 9 strategies, I want to tell you that optimizing your email subject line is a critical aspect of any email marketing strategy for any business. Okay, so if you rely on email marketing for generating traffic or for generating clicks and earning commissions, you should be able to craft email subject lines in a way that it improves your open rates and also your clicks. Okay, look, email subject line is the first thing that people see. Hence, it plays a pivotal role in determining whether your email gets opened and clicked or not. Okay, so first I will share the importance of email subject lines. Okay, the first importance is it makes the first impression. Look, email subject line is the first thing that recipients see when they receive an email. ठीक है, तो अगर हम email subject line को compare करें किसी चीज से, so it will be thumbnail of a YouTube video और cover of a book. So you know, जो पहली चीज लोग देखते हैं based on the first impression, वो देखते हैं कि वो बुक खरीदनी है या नहीं, वो YouTube वीडियो पे क्लिक करना है या नहीं, अगर कोई ब्लॉग पोस्ट है ये टाइटल पे क्लिक करना है या नहीं. ठीक है, सो email subject lines are extremely crucial with that regard. Okay, in that regard. Okay, the second thing that email subject lines do is that they impact the open rates of emails. Okay, look, a well-crafted subject line can significantly impact the open rates of an email. ठीक है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप आपका जो email subject line है उसे बहुत अच्छे से क्राफ्ट करें. और थोड़ी देर में मैं आपको 9 स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जिसको इम्प्लीमेंट करके आपके जो ईमेल सब्जेक्ट लाइन है पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकेंगे. ठीक है, एंड द थर्ड इंपॉर्टेंस ऑफ ईमेल सब्जेक्ट लाइन्स इज रेलिवेंस. नो मैटर हाउ कंपेलिंग योर ईमेल कंटेंट इज, लेकिन अगर आपकी सब्जेक्ट लाइन रेलिवेंट नहीं है तो लोग उसे ओपन नहीं करेंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पाइथन प्रोग्रामर्स आपके ईमेल लिस्ट में, लेकिन आप उन्हें पैकेट प्रोग्रामिंग का, सॉकेट प्रोग्रामिंग का ईमेल भेज रहे हैं, आपके सब्जेक्ट लाइन में सॉकेट प्रोग्रामिंग है, सो नो मैटर हाउ वेल यू हैव रिटन द ईमेल, वो उन्हें ओपन नहीं करेंगे. ठीक है, तो मेक श्योर आप जो ईमेल लिख रहे हैं उसकी सब्जेक्ट लाइन आपके कंटेंट और आपकी टारगेट ऑडियंस के रेलिवेंट हो. ओके, एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंस ऑफ ईमेल सब्जेक्ट लाइन्स इज डिलीवरेबिलिटी. जो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स है वो आपके ईमेल के ओपन रेट्स को कंसिडर करते हैं. इट इज़ वन ऑफ द फैक्टर जिससे डिटरमिन होता है कि आपके जो ईमेल्स है वो इनबॉक्स फोल्डर में जाएंगे, प्रमोशंस में जाएंगे या स्पैम में जाएंगे. ठीक है, सो ये 4 चीज़ें काफ़ी ज़रूरी है. अगर आपने अच्छी ईमेल सब्जेक्ट लाइन लिखी है तो उससे एक अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन पड़ेगा, उससे ओपन रेट्स बढ़ेंगे और वो जो सब्जेक्ट लाइन है वो रेलिवेंट होनी चाहिए टू योर टारगेट ऑडियंस एंड जो ईमेल बॉडी आपने लिखी है. और उसके अलावा अगर आपकी ईमेल सब्जेक्ट लाइन अच्छे से क्राफ्टेड है तो जो डिलीवरेबिलिटी है वो इम्प्रूव होगी. ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स देखेंगे कि ओपन रेट्स इम्प्रूव हो रहे हैं तो जो इनबॉक्स फोल्डर है उसी में आपके ईमेल्स लैंड होंगे. ओके, सो विद दैट बीइंग सेड, let's look at the 9 aspects or factors through which you can improve your email open rates. Okay, the first factor or strategy is to segment your email list. Segmentation is an extremely powerful strategy for improving your email open rates. ठीक है, so instead of sending generic emails to your entire list, आप लोगों के interests के हिसाब से, demographics के हिसाब से या उनका जो बिहेवियर है आपके वेबसाइट पे, आपके प्लेटफॉर्म पे, उसके हिसाब से आप उन्हें ईमेल्स भेज सकते हैं. आप अपने ईमेल्स को 3 तरीके से सेगमेंट कर सकते हैं. नंबर 1 इज थ्रू जोग्राफी, थ्रू लोकेशन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपके ईमेल सब्जेक्ट लाइन में लोग मुंबई से है और कैलकाटा से. ठीक है, तो अगर आपको कोई मुंबई का सीजनल ऑफर देना है तो आप उन्हें दीजिए जो मुंबई से है. राइट, कैलकाटा वाले लोगों को वो ऑफर देना विल नॉट मेक सेंस. सो व्हेन यू सेगमेंट योर ईमेल इज बेस्ड ऑन लोकेशन, तो आप
स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस को ही टारगेट कर रहे हैं, वही लोग ओपन करेंगे इससे। आप वही लोगों के लिए भेज रहे हैं, तो वो लोग जब देखेंगे कि ये ऑफर सिर्फ मुंबई के लोगों के लिए है, तो वो लोग ही उसे ओपन करेंगे। इससे आपका ईमेल रेट इंप्रूव होगा, ठीक है। द सेकेंड एस्पेक्ट या सेकेंड फैक्टर थ्रू विच यू कैन सेगमेंट योर ईमेल लिस्ट इज बिहेवियर। अगर कोई आपके ईमेल सब्सक्राइबर्स आपके वेबसाइट पे आते हैं और कोई पर्टिकुलर पेजेस में ही इंटरेस्ट दिखाते हैं, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स में ही इंटरेस्ट दिखाते हैं, आप उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उन्हें सेगमेंट कर सकते हैं इनटू डिफरेंट लिस्ट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लेट्स से आप बेली फैट लॉस का प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं और बेली फैट लॉस में भी लोग ज़्यादातर योगा रिलेटेड चीज़ें देख रहे हैं, बेली फैट लॉस थ्रू योगा, आप उनकी एक डिफरेंट लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। एक और थर्ड चीज़ है विच इज़ इंटरेस्ट। अगर वो कोई स्पेसिफिक ईमेल्स पे ही क्लिक कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट लाइन के ईमेल, कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे, आप उसके हिसाब से भी उन्हें सेगमेंट कर सकते हैं इनटू डिफरेंट लिस्ट्स, ओके। सो दैट वाज फैक्टर 1, सेगमेंट योर ईमेल लिस्ट। The second strategy to improve your email open rates is to personalize subject lines. Personalization तो अगर मैं बहुत ही सिंपल वे में बताऊँ तो आप रेसिपिएंट का नेम यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो उनकी सिटी यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहे तो जो उनका पास्ट बिहेवियर है उसके हिसाब से भी उन्हें सेगमेंट कर सकते हैं इनटू वेरियस लिस्ट्स, ठीक है। तो द फर्स्ट एस्पेक्ट इज थ्रू नेम। लेट्स से आपने लीड्स कलेक्ट किया, उसमें आपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कलेक्ट किया है। आप किसी लेट्स से उनमें से किसी का नाम है, लेट्स से शुभमजीत ही नाम है, तो आप उन्हें भेजते हैं हाय शुभमजीत, या फॉर एग्जांपल शुभमजीत चेक आउट दिस एक्सक्लूसिव ऑफर। तो मेरा नाम जब मैं देखता हूँ ईमेल सब्जेक्ट लाइन में, तो मैं और क्यूरियस हो जाता हूँ उस पर क्लिक करने के लिए, बिकॉज एक इंसान के लिए सबसे अच्छी जो साउंड होती है, सबसे अच्छा जो वर्ड होता है, वो उसका खुद का नाम होता है। तो अगर आप उनका नाम अपने ईमेल सब्जेक्ट लाइन में यूज करते हैं, तो दे आर मोर क्यूरियस टू सी कि इसके अंदर क्या है, ठीक है। नाउ द सेकेंड वे थ्रू विच यू कैन पर्सनलाइज योर ईमेल सब्जेक्ट लाइन इज बाय यूजिंग लोकेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप लोकेशन वाइज अपने ईमेल लिस्ट को सेगमेंट करते हैं, तो वो स्पेसिफिक जगह के लोगों के लिए आप ऑफर्स दे सकते हैं और वही स्पेसिफिक जगह के लोगों को आप भेज सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल आपकी ईमेल सब्जेक्ट लाइन हो सकती है एक्सक्लूसिव ऑफर या एक्सक्लूसिव डील्स फॉर मुंबई एफिलिएट मार्केटर्स, या एक्सक्लूसिव डील्स फॉर पाइथन प्रोग्रामर्स फ्रॉम मुंबई, exclusive deals for yoga experts in Delhi. Third way through which you can personalize your subject line is by behavior. Let's say आपके वेबसाइट पे योगा का पेज है और किसी पे डाइट का पेज है, रैंडमली कोई दो लोग योगा के पेज पे जाते हैं, तो वो दो लोगों को आप जो योगा रिलेटेड आपके ईमेल से वही भेज सकते हैं, ठीक है। इससे होगा ये, अगर आप उनका नाम यूज़ करते हैं, लोकेशन यूज़ करते हैं और उनकी जो परचेज हिस्ट्री है आपके वेबसाइट पे जो बिहेवियर है उसके हिसाब से जब आप सेगमेंट करते हैं, तो सिंस उनके इंटरेस्ट बेस्ड, लोकेशन बेस्ड, उनके नाम पे के बेसिस पे आप उन्हें ईमेल्स भेज रहे हैं, तो वो और ज़्यादा क्यूरियस होंगे। वाई? बिकॉज उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया, विच मीन्स अगर आप उन्हें उनके इंटरेस्ट का कोई ईमेल भेजेंगे, दे आर मोर लाइकली टू ओपन इट, एंड दैट्स वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज थ्रू विच यू कैन इम्प्रूव द ईमेल ओपन रेट्स, ओके। Now, the third thing that you can do to improve your email open rates is to use emojis wisely. Emojis आपके जो email subject lines है उसमें visual appeal add कर सकते हैं, which can help you to stand out from the crowd, और it can also help you to stand out from other emails जिसमें plain text use किया हुआ in the subject lines, ठीक है। However, जो emojis है उन्हें बहुत ही wisely use करना चाहिए। आप एक ईमेल सब्जेक्ट लाइन में 8-10 इमोजीज यूज नहीं कर सकते हैं। एज पर माई एक्सपीरियंस एक सब्जेक्ट लाइन में 1 or 2 इमोजीज आर फाइन, ठीक है। आप उससे ज़्यादा इमोजीज यूज मत कीजिए, बिकॉज जितने ज़्यादा यूज करेंगे उतना वो स्पैम में दिखेगा, ओके। एज पर माई एक्सपीरियंस आप वही वाले इमोजीज यूज किए जो आपके ईमेल जो बॉडी है उसके रेलिवेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10 मिस्टेक्स मेड बाय पाइथन प्रोग्रामर जैसा आप कंटेंट कवर कर रहे हैं आपके ईमेल के अंदर, ये आपकी ईमेल की बॉडी है, तो आप जो मिस्टेक्स रिलेटेड इमोजी होते हैं, सैडनेस के, क्राइंग के, डिप्रेशन के, आप वो वाली यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ द फोर्थ स्ट्रैटेजी थ्रू विच यू कैन इम्प्रूव योर ईमेल ओपन रेट्स इज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। लुक,
subject lines that create a sense of urgency or fear of missing out can be highly effective. So अगर आप urgency और FOMO यूज करते हैं, fear of missing out in your email subject lines, तो आपका जो रेसिपिएंट है जिन्हें वो ईमेल मिलते हैं उन्हें ऐसा लगता है सिर्फ इतना ही लिमिटेड टाइम बचा है, तो लेट मी क्लिक एंड सी कि इसके अंदर क्या है। मैंने बहुत बड़ी गलती ये की थी कि मैं बहुत ही जेनेरिक ईमेल सब्जेक्ट लाइंस यूज़ करता था। बहुत ही जेनेरिक होते थे मेरे ईमेल सब्जेक्ट लाइंस, उससे मेरा ओपन रेट इतना अच्छा नहीं था। बट जब से मैंने अर्जेंसी और फोमो इनकॉर्पोरेट किया अपने ईमेल सब्जेक्ट लाइंस में, मेरे ओपन रेट्स काफ़ी बढ़ गए हैं। आई थिंक इट इज़ अप टू 45% नाउ। तो some examples of urgency based email subject lines could be 24-hour flash sale, only 3 items left in stock, और the sale ends in let's say 3 hours। ठीक है, तो जब आप ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं तो लोगों को होता है 3 hours लेफ्ट, मुझे अभी क्लिक करके परचेज करना ही होगा, अदरवाइज आई लूज आउट। ओके, नाउ द फिफ्थ वे थ्रू विच यू कैन improve your email open rates is to use numbers and lists in email subject lines। मैंने कहीं पे ये एक स्टडी पढ़ी थी जिसमें था कि इनकॉर्पोरेटिंग और यूजिंग नंबर्स एंड लिस्ट्स इन योर ईमेल सब्जेक्ट लाइंस कैन मेक देम मोर एंटाइसिंग। और ये ब्लॉग पोस्ट के भी केसेस में होता है, जब आप नंबर्स यूज करते हैं पीपल रियली आर मोर लाइकली टू क्लिक। उसके पीछे साइकोलॉजिकल रीजन क्या है आई एम नॉट श्योर, बट जो मेरे मन में एक वेग आइडिया आया है वो ये है कि इट प्रोवाइड्स अ क्लियर स्ट्रक्चर या क्लियर नंबर दे देता है जो आपके ईमेल रेसिपिएंट को ये बोलते हैं कि जो आपका ईमेल है एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ चीजें कंटेन करता है, स्पेसिफिक नंबर ऑफ आइटम्स कंटेन करता है इन द ईमेल। ठीक है, फॉर एग्जांपल 10 ways to boost immunity, 5 must have products for summer, and so on। Okay, now the sixth way through which you can improve your email open rates is to ask questions। Rhetoric questions in the email subject lines can pique curiosity and encourage your recipients to open your emails in search for answers। However, you should be careful to not ask questions that can be answered with a simple yes or no। So instead of asking have you heard about this or do you know this, ask something जिसका एक बहुत ही open ended आंसर होगा, जिसका बहुत ही long आंसर होगा। For example, how do you do this, struggling to sleep at night, we have solutions। Do you want to save your money for the next vacation, we have solutions। ऐसा कुछ आप यूज कर सकते हैं जिसका जो आपकी रेसिपिएंट है उनके मन में एक बहुत ही लंबा आंसर बनना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हाउ टू डू दिस, why you should not do this, here's why this is beneficial for you, and so on। ठीक है, so always ask questions, but ask questions that do not have a simple yes or no answer, और उसे आप अच्छे से explain कर सकते हैं in your email। Okay, now the seventh strategy through which you can improve your email open rates is to keep your email subject lines short। एक average individual का जो attention span है वो I think 3 to 6 seconds ही है। तो अगर आप बहुत बड़ी ईमेल सब्जेक्ट लाइन लिखेंगे तो आई डोंट थिंक वो 2-3 वर्ड से ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप योर ईमेल सब्जेक्ट लाइंस ब्रीफ, उन्हें आप छोटा ही रखिए। जो बहुत सारे ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो कहते हैं कि 30 to 50 कैरेक्टर्स आप यूज़ करते हैं एंड दे आर आइडियल। 30 to 50 कैरेक्टर्स आर आइडियल इन एन इफेक्टिव ईमेल सब्जेक्ट लाइन। ठीक है, लुक, जो छोटी सब्जेक्ट लाइन्स होती है दे आर मोर स्कैनेबल and easy to understand and digest। ठीक है, for example 50% off only today, or a new arrivals shop now, or let's meet tonight अगर आप कोई वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं तो। ठीक है, keep it small। अगर आप कोई बड़ी चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं, let's say you are explaining what is a function in Python programming, तो आप उसे छोटा ही रखिए। आप ये लिखिए what is a function in Python, और Python functions explained, Python functions simplified। ठीक है, और आपकी ईमेल सब्जेक्ट लाइन भले आप छोटी ईमेल सब्जेक्ट लाइन यूज कर रहे हैं, पर वो सब्जेक्ट लाइन पढ़ के आपके जो रेसिपिएंट्स है उन्हें पता चल जाना चाहिए कि आपके ईमेल के अंदर क्या कंटेंट रहने वाला है। ठीक है, कीप इट शॉर्ट बट डिस्क्रिप्टिव। वो ईमेल सब्जेक्ट लाइन पढ़ते ही पता चल जाना चाहिए कि ईमेल के अंदर क्या है। ठीक है, नाउ द 8th स्ट्रैटेजी टू इम्प्रूव योर ईमेल ओपन रेट्स इज टू टेस्ट। अगर आप टेस्ट नहीं करते हैं तो आपको वो जो रिजल्ट्स आप चाहते हैं वो नहीं मिलेंगे। ऑल्दो मैंने पहले 7 पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए, जब तक आप टेस्ट नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि व्हाट वर्क्स फॉर यू। ठीक है, तो अगर मैं कुछ स्पेसिफिक पॉइंटर्स देना चाहूँ अबाउट व्हाट टू टेस्ट इन एन ईमेल सब्जेक्ट लाइन, इट कुड बी दीज 5 थिंग्स। नंबर 1,
इज द वर्ड चॉइस। आपको ये देखना होगा कि जो आपने ईमेल सब्जेक्ट लाइन लिखी है, क्या आप उसे दूसरे कोई और वर्ड्स में लिख सकते हैं, कोई दूसरा फ्रेज है, आप कोई रीवर्ड कर सकते हैं, कोई रीवर्क कर सकते हैं ईमेल सब्जेक्ट लाइन में। ज़रूरी नहीं है कि व्हाट इज़ पाइथन आप यही लिखें, आप पाइथन प्रोग्रामिंग सिंप्लीफाइड ऐसे भी कुछ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और द सेकेंड थिंग दैट यू शुड टेस्ट इन एन ईमेल सब्जेक्ट लाइन इज द लेंथ। जैसा कि मैंने प्रीवियस पॉइंट में बताया, ideally 30 to 50 characters is an ideal length of an effective email subject line, but आप थोड़ी बड़ी भी ट्राई कर सकते हैं और बहुत छोटी भी ट्राई कर सकते हैं to see what works for you. Okay, now the third thing that you should test in an email subject line is personalization. आप चेक कर सकते हैं कि अगर आप रेसिपिएंट का नेम लिखते हैं तो उससे कितना ओपन रेट होता है, अगर आप रेसिपिएंट का नेम नहीं यूज़ करते हैं तो उसका ओपन रेट पे इफेक्ट क्या होता है, अगर आप लोकेशन यूज़ नहीं करते उसका क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। तो आप ये चीज़ों में भी मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, यू कैन प्ले अराउंड एंड सी के रिजल्ट्स क्या आते हैं। नंबर 4, इमोजीज। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, यूज़ 1 और 2 इमोजीज। अगर आप उससे ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आप उसका इम्पैक्ट देखिए, या आप इमोजीज बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं, अब उसका भी इम्पैक्ट देखिए आपके ईमेल्स ओपन रेट्स में क्या पड़ता है, ठीक है। एंड द फिफ्थ थिंग दैट यू शुड टेस्ट इज अर्जेंसी। आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि जहाँ पे आपने अर्जेंसी यूज़ की है उसका ओपन रेट क्या है वर्सेस ऐसे ईमेल सब्जेक्ट लाइंस का जहाँ पे आपने अर्जेंसी या फियर ऑफ मिसिंग आउट यूज़ नहीं किया। कंपेयर कीजिए दोनों का रिजल्ट क्या है, और जो अच्छा परफॉर्म करता है आप उसे फिर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन योर नेक्स्ट ईमेल मार्केटिंग कैंपेन। ओके, एंड द 9th स्ट्रैटेजी टू improve your email open rates is to avoid spam triggers. According to my experience, कुछ ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस है इन द ईमेल सब्जेक्ट लाइन दैट कैन ट्रिगर स्पैम फिल्टर्स एंड हार्म योर ईमेल डिलीवरेबिलिटी। ओके, तो आप ऐसे वर्ड्स या टैक्टिक्स यूज करना बंद कीजिए जो आप यूज कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग कैपिटल लेटर्स, पूरी जो ईमेल सब्जेक्ट लाइन है वो सिर्फ अपर केस लेटर्स में लिखी है। यूजिंग मल्टीपल एक्सक्लेमेशन मार्क्स, यस, अगर आप ज़्यादा एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी यूज़ करते हैं वो भी आपके ईमेल ओपन रेट्स को हार्म करता है, डिलीवरेबिलिटी को हार्म करता है। आप 100% फ्री, गारंटी, वारंटी, डिस्काउंट, ये वाले वर्ड्स भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको जानना है कौन से ऐसे ट्रिगर वर्ड्स है या कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिससे आपकी ईमेल डिलीवरेबिलिटी पे फ़र्क पड़ता है और आपका ईमेल स्पैम फोल्डर में जा सकता है, आई प्लेस अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, बहुत सारे ऐसे ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो स्पैम फिल्टर्स यूज़ करते हैं। आप एक सब्जेक्ट लाइन लिखते ही आपको पता चलता है कि ये स्पैम है या नहीं है, कितने चांसेस है कि ये स्पैम फोल्डर में जाएगा, ठीक है। सो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल व्हेन यू क्राफ्ट एन ईमेल सब्जेक्ट लाइन। मेक श्योर कि आप जो स्पैम ट्रिगर्स है उन्हें अवॉइड करें। बट कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स है जो भले ही आपका इंटेंशन नहीं है स्पैम करने का, बट स्टिल दे कुड ट्रिगर स्पैम वर्ड्स या दे कुड साउंड स्पैमी। सो तो थोड़ा सा उन्हें स्ट्रेटेजिकली प्लेस करना होगा। फ्री के जगह पे आप F-R-E-E ऐसा कुछ यूज कर सकते हैं, या F.R.E.E अगर आपको फ्री यूज ही करना है। बट स्टिल जो ईमेल स्पैम फिल्टर्स है आप उन्हें टेस्ट कीजिए, उनके बाद ही आप उन्हें यूज कीजिए। ओके, so those were the 9 strategies through which you can improve your email open rates. Now, I have a question for you. Do you want to create effective email campaigns? अगर आप एक ऐसे affiliate marketer है जिन्हें email marketing start करनी है, you can go to this link shubhamjeetkumar.com/moosend. I've also placed the link in the description box. ये ईमेल मार्केटिंग टूल है जो मैं यूज़ करता हूँ टू रन ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स। इसमें मैं अपने ईमेल लीड फॉर्म्स क्रिएट करता हूँ, ईमेल लिस्ट क्रिएट करता हूँ, इसे से मैं ऑटोमेशन भी क्रिएट करता हूँ। तो अगर आपको भी ईमेल मार्केटिंग यूज़ करनी है टू इंक्रीज योर रेवेन्यू, यू कैन क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लीज नोट दैट द लिंक shubhamjeetkumar.com/moosend इज माई affiliate लिंक, और अगर आप वो लिंक पे क्लिक करके परचेज करते हैं, आई विल मेक अ कमीशन एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट टू यू। तो जो मूसेंड के लिए मैं पे कर रहा हूँ आप भी उतना ही पे करेंगे, बट थोड़ा सा कमीशन मुझे मिलेगा। ओके, सो क्लिक द लिंक। और मूसेंड एक बहुत अच्छा ईमेल मार्केटिंग टूल है। उसमें ईमेल सब्जेक्ट लाइन रिफाइन, आई थिंक ईमेल सब्जेक्ट लाइन एनालाइजर है, जिसपे आप अपनी ईमेल सब्जेक्ट लाइन
ट्राई कर सकते हो कितना अच्छा परफॉर्म करेगी, ठीक है। और जो मूव सेंड का आई थिंक मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ, रिफाइन, मूव एंड रिफाइन है उनके सब्जेक्ट लाइन एनालाइजर का नाम। उसमें आप अपने सब्जेक्ट लाइन को कॉपी पेस्ट कीजिए और देखिए कि क्या स्कोर आता है और वो कितना अच्छा परफॉर्म कर सकती है। जो मूव का रिफाइन है वो आपको सजेशंस भी दे देगा जिसको इम्प्लीमेंट करके आप अपने ईमेल सब्जेक्ट लाइन को और इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। So that's about this video. In this video, I shared how affiliate marketers can optimize the email subject lines to improve their email open rates. और मैंने ऐसी 9 स्ट्रैटेजीज भी बताई जिसको फॉलो करके आप अपने ईमेल ओपन रेट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। I shared 9 strategies through which you can improve your email open rates, and towards the end, I shared a link to the email marketing tool that I use. Please note it is my affiliate link and I will make a commission at no extra cost to you if you click the link and purchase. Okay, so that's about this video. If this video provided you with value, please give it a thumbs up and share your feedback in the comments box below. And if you'd like to see content related to affiliate marketing, please subscribe to the channel and click the notification bell to receive updates as soon as I post new videos. So that's about it. Thank you so much for watching this video and I will see you in the next one. Bye bye.